Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start exercise 4D of D3, 8th edition, and this is related with exponential growth and decay. The question number 1, they are saying that the number of bacteria in a petri dish doubles every year if the initial number of bacteria is 50. How many bacteria are there after 6 hours? So remember that it's a double. So something, if its price is 100, so double mean its price will be 100% increase. So that means 100 plus 100, it's 200% increase in that. The initial number of bacteria are 50, multiply with 200% power 6. You can do it directly with the help of calculator, or if you want to change that percentage, so you can divide it with 100 and you will get your final answer, that is 3200. Moving towards question number 2, and in question number 2 they are saying that question number 1 and this is question number 2, and in question number 2 they are saying that the number of tourists visit a particular attraction in 2018 was 22,000. These are the number of visitors that are visiting. Each year the number decline by 12%. So when the decline means depreciate, so it will equal to 100. If it's depreciate, that is how much it is depreciating, 100 minus 12%, so it will be equal to 88%. Clear? So 88%, and after 2018 it is starting time, and we have to find the time till 2030. Find the number of tourists. So how many years are in between? There are 12 years. So that means the time is 12. So let us find out the number of visitors. It will be 22,000 multiply with 88% power 12. Why we are taking power 12? Because the number years between 2018 till 2030 is 12. So you can directly put the value, or if you want to write, so you can write it in you can remove the percentage as well. So the final answer is 4744.76. if you will round it off, so you will get an answer 4740. Okay, question number 3. Initially, the population of species of insect in the colony is 1000. They are saying that initially the population is this. It is increased 1% daily. So 1% increase mean 100 plus 1. So that means it's 101% increase. Write down a formula for the population after D days. So after D days we have to write down the population formula. So it will be equal to, P will be equal to, obviously the population that was initially, it was 1000, multiply with 101% is increase, and daily because it is increasing, so D will be in this form. Clear? Now they are saying that what is the population after 30 days. So we will put 30 in place of D, and we will get an answer, that is 1.101. We can write it as 1.01. So percentage will be removed and it is 30. And if you want to keep in percentage, that is your choice. And the answer from here, it is 1347, or if you will round it off, so the answer will be equal to 1350. Moving towards question number 4. Question number 4, they are saying that the value of the painting is in dollars, that is 2000 multiply with 1 power n. After, this is after 2022, what was the initial value of the painting? So this was after, when it was, there is no increase in the price, so that means the power of n will be equal to 0 when there is no increase. So that means in 2000 the population, in 2020 the price will be equal to 2000. Find the value of the painting in 2030.
The starting was 2020 and we have to find the price in 2030. That means there is a gap of 10 years. So in place of n, we will put the value 10. 2000 multiply with 1.1 power 10 and you will get an answer that is $5.5187. Clear? Moving toward question number 5. Question number 5 is saying that Yasir bought a car for an amount of money. After t year, its value is given by, that is P is equal to 25,000 multiply with 0.86 t. T is time. After t years, this value is given. How much did the Yasir spend on this car? So obviously, when he bought, तो कोई year गुजरा हुआ नहीं था. So that means t will be equal to 0 and the original amount was this. Find the percentage decrease in the value of each year. We know that this is the number that we will get after subtraction it from 100. So that means this is 86% है. ये 86% है. हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है कि कितना डिक्रीज़ हुआ. सो हम 100 में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि 100 से माइनस करके परसेंटेज हम यहाँ पे लिखते हैं. सो अभी हम इसको ओरिजिनल जितना डिक्रीज़ है हम फाइंड आउट करने के लिए इसको 100 से माइनस करेंगे. सो दैट मीन 14% जो है वो ईच ईयर क्या हो रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है. एंड बिकॉज ये डेप्रीशिएट करने के बाद आप ये वाला आंसर लिखते हैं ना, सो उसको करने के लिए हम वही 100 से माइनस कर लेंगे एंड वी विल गेट एन आंसर. सो 14% जो है वो डेप्रीशिएट हो रही है ईच ईयर वैल्यू. मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is saying that a company was founded on January 2022. After t year, its number of customer is given by. नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो टी ईयर्स के बाद कितने हैं, 30 मल्टीप्लाई विद 1.2 पावर टी. टी इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स. स्टेट दैट द इनिशियल नंबर ऑफ कस्टमर द कंपनी हैज़. सो ऑब्वियसली जब कोई साल नहीं गुजरा था तो स्टार्टिंग में उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने थे, 30 थे. अच्छा जी, हाउ मच कस्टमर डज द कंपनी हैव आफ्टर 3 ईयर्स. सो इन प्लेस दिस वाज पार्ट 1. पार्ट 2 में आपके पास है आफ्टर they are saying that picture blur हो रही है. after 3 years 1.2 power 3. so after 30 years हमारे पास जो अमाउंट आएगी, जो कस्टमर्स आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे जनाब 51.84. अब पॉइंट्स में तो कस्टमर हो नहीं सकते तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे. सो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 52. थर्ड पार्ट है आपके पास कि इन विच ईयर विल द कंपनी हैव 100 कस्टमर. अब देखें 3 पे आपके पास 52 कस्टमर्स थे तो 100 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि 6 पे हमारे पास मतलब 51 थे. तो 51 प्लस 51 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 100 बन जाएगा. तो दैट मीन इसको अगर हम डबल करते हैं, 6 करते हैं तो हमें आंसर मिल सकता है. सो हम 6 और 7 दोनों पे चेक करते हैं. सो जब मैंने 6 पे चेक किया, सो 1.2 पावर 6, तो मेरे पास आंसर यहाँ से आया था 98 पॉइंट समथिंग. ठीक है. और फिर मैंने जब 7 से चेक किया, सो आई गॉट द आंसर दैट इज़ 107. उन्होंने कहा 100 होने चाहिए. अब यहाँ पे 100 से ज़्यादा हो चुके हैं. सो दैट मीन यहाँ पे उसके पास 6 ईयर्स के बाद, मतलब 6 ईयर में फिर 1-2 मंथ्स बाद या 3-4 मंथ्स बाद उसके पास जो कस्टमर हैं उसके वो 100 हो जाएंगे. ठीक है. सो ही स्टार्टेड इन 2022 एंड आफ्टर 6 ईयर्स, सो प्लस 6 दैट मीन 2028 में उसके पास जो है कस्टमर की स्ट्रेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 उसकी कंप्लीट हो जाएगी. Clear? Moving toward question number 7, and question number 7 they are saying that in a particular experiment a radioactive sample has its mass halved every year. अब मास जो है वो हाफ हो रहा है हर साल. अब हाफ होने के बाद जो है हाफ कब हो रहा है, 1.5 और के इंटरवल में. अब ये होता है कि जब ज़्यादा टाइम होता है तो उसमें कुछ इंटरवल्स भी आ जाते हैं. तो जो टोटल टाइम गिवन होगा उसको पहले हम उस इंटरवल से डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर. आफ्टर 6 ईयर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इट मास इज़ 300. मतलब 6 साल बाद जो उसका मास रह गया है,
उसके बाद उसका मास जो रह गया है वो आपके पास रह गया 300। हमने फाइंड आउट बेसिकली करना है इनिशियल मास जो एक्चुअल मास है। सो मास के लिए हमारे पास आ जाता है कि एक्चुअल मल्टीप्लाई विद 0.5 पावर n। 0.5 मैंने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कहा जी हाफ हो रहा है, ठीक है, हर एक रेडियो एक्टिव में हाफ होता जा रहा है अपने इंटरवल्स के बाद, इस इंटरवल के बाद। सो हम एक्चुअल फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे, मैस दैट इज़ 300 हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय 0.5 पावर n। अब 0.5 में हमारे पास पावर n में हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास कब हुआ है, 6 उसमें हमारे पास कम हुआ है ना, 6 आवर्स में कम हुआ है, और 6 आवर्स में फिर हमारे पास इंटरवल्स भी थे। इंटरवल आपके पास क्या थे, 1.5 का इंटरवल था। चाहे तो आप डायरेक्टली इसको कर लें, या पहले आप 6 डिवाइडेड बाय 1.5 कर लें और फिर उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इधर से हमारे पास आंसर आता है 4800 इसका था इनिशियल मास, जो स्टार्टिंग का इसका एक्चुअल मास था। कैलकुलेट द मास ऑफ रेडियो एक्टिव, जो भी हमारे पास मटेरियल है 24 और आफ्टर इट स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, मतलब 24 आवर्स के बाद। अब 24 आवर्स है लेकिन उसमें इंटरवल कितना है, 1.5 का। आपने ये इंटरवल मिस नहीं करना, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट 24 लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास मास उसका कितना है इनिशियली 4800 है। अब आप इनिशियल वाला मास लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई विद वही हमारे पास है 0.5, क्योंकि हाफ हो रहा है, हाफ कब हो रहा है 24, बट इंटरवल उसमें कितना है 1.5 का है। सो 24 डिवाइड बाय 1.5 करके पावर ले लें, या अगर आप डायरेक्ट ले सकते हैं सो यू कैन डू इट डायरेक्टली एज वेल, एंड द आंसर इज 0.073 ग्राम्स, मतलब इतना कम हो जाएगा मास उसका। थर्ड है आपके पास कि यासिर इंटेंड्स टू एंड द एक्सपेरिमेंट, जब उसका मास जो है सैंपल का 75 ग्राम रह जाएगा। सो स्टार्टिंग में हमारे पास 300 ग्राम था, और ये कब कम हुआ, 6 आवर्स के बाद कम हुआ। अब हमारे पास 1.5 का इंटरवल है, 1.5 के बाद वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सो 1.5 हम इसमें से अगर माइनस करते हैं टाइम में से, तो ये आपके ऐड करते हैं, सॉरी, सो ये आपके पास हो जाएगा 7.5, और यहाँ से मास हमारे पास कितना हो जाएगा 150 ग्राम्स। फिर 7.5 में 1.5 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 आवर्स, और 9 आवर्स पे हमारे पास मास इसका कितना हो जाएगा 75 ग्राम। यहाँ पे उसने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है अपना एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट वो कब स्टॉप करेगा, 9 आवर्स के बाद अपना एक्सपेरिमेंट वो स्टॉप कर देगा। Moving towards the last question of this exercise, that is question number 8, and question number 8 is saying that in a particular study the population of town is observed to follow a cycle every 2 years. In the first year its population increased by 10%, so increased by 10% है, so हमारे पास क्या बन जाएगा 110%। नेक्स्ट मतलब 2 years का इंटरवल है, एक साल में 10% इंक्रीज होती है, एक साल में 10% डिक्रीज होती है, ठीक हो गया। इफ़ द करंट पॉपुलेशन इज़ 50,000, अगर करंट पॉपुलेशन हमारे पास 50,000 है, सो हमारे पास वो कह रहे हैं कि 40 ईयर्स के बाद आपके पास उसका कितना होगा टाइम इंटरवल, ठीक है। सो 40 ईयर्स के बाद हम लोग और एवरी 2 years का स्पैन है उसका। सो 40 ईयर्स के बाद हमारे पास एक तो 110% इंक्रीज़ हो रहा है और 90% डिक्रीज़ हो रहा है, और 40 ईयर्स हैं और स्पैन कितना है 2 years का, इंटरवल जो है वो हमारा कितना है 2 years का। सो यहाँ से 50 पे पावर नहीं है, रिमेंबर दैट द पावर इज़ ओनली ऑन 110 एंड 90%। सो यहाँ से हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा दैट इज़ 40,895 पॉइंट्स में है, लेकिन पॉइंट्स में ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो हो नहीं सकती, तो हम सिर्फ होल नंबर को ही कंसीडर करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 4D। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।